Honorable Minister for Communications and IT, Honorable Member of Parliament, distinguished guests, ladies and gentlemen, we have gathered here today for the release of commemorative postage stamp on Kuka movement. Commemorative postage stamps are issued to remember, celebrate and promote national heritage and significant events in our history. Modern Indian history is replete with numerous socio-religious and resistance movement to purge the society and to liberate the homeland from colonial political subjugation. One of such events in history was the Kuka movement. Kuka movement was the most important phase of Namdhari movement aimed at overthrowing the British. Now, Namdharis were called Kukas because of their trademark style of reciting the Gurbani. This movement evoked the feelings of self-respect and sacrifice for the country. They called for boycott of educational institutions of British and laws established by them. The Kuka followers actively propagated the civil disobedience. It was natural that there would be clashes between the Kukas and the British Empire, which started in the 1870s and continued thereafter. It is therefore apt that this great movement ought to be commemorated through release of postage stamp. May I now request the Honorable Minister of Communications and IT to release the commemorative postage stamp on Kuka movement and address the gathering. Before that, Tarlochhan Singh will be for Member of Parliament. माननीय श्री रविशंकर प्रसाद जी, आपका बहुत धन्यवाद है। और ये कुका मूवमेंट के बारे में सरकार की मेहरबानी है कि फ्रीडम मूवमेंट का इतना बड़ा जो एक इंसिडेंट था, जो कि मैं समझता हूँ कि 40-50 सालों में इग्नोर ही किया रखा गया था, वो आज हम सब की और आपकी मेहरबानी से और ख़ास करके हमारे मेंबर पार्लियामेंट जिन्ना साहब जी कि इन्होंने बड़ी एफर्ट करके ये करवा रहे हैं। 1849 में सर पंजाब went to the British. We were the last in India to lose our sovereignty. So after 1849, Satguru Ram Singh was the first person who started almost a revolt against the British Empire, and he started a movement of non-cooperation. But this movement was so much powerful that the British tried to kill them at the very beginning. और इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा वाक़या मलेरकोटले का कि जब एक दिन में तोपों के सामने कुका मूवमेंट के वॉलंटियर तोपों से उड़ाए गए। More than 26 people were blown by the cannons at one place. इससे बड़ा वाक़या इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट में नहीं है। 66 और उसके बाद इन्हीं के लोगों को फांसी भी लगी और सतगुरु राम सिंह जी को डिपोर्ट करके रंगून भेजा गया। लेकिन ये मूवमेंट इतनी पावरफुल रही कि लाखों इनके सेवक पंजाब में ये मूवमेंट चलाते रहे। इनका ड्रेस देखिए आप कि बड़ी सिंपल वे में वेजिटेरियन, एंटी ड्रग, एंटी अल्कोहल सब कुछ ये सुधार करते हैं। तो आज आपकी मेहरबानी से ये स्टैम्प उनकी याद में आप कर रहे हैं। वी आर ऑल ग्रेटफुल टू यू। और ये इतना बड़ा आप जो ये उद्यम कर रहे हैं, everyone in Punjab is grateful to you, sir, for your this. इसके सिरा अब रिलीज करें उसको फॉरवर्ड। May I now request the Honorable Minister of Communications and IT to release the commemorative postage stamp on Kuka movement and address the gathering. थोड़ा सा साथ देखो तो अरे हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आइए, इधर आइए। सर इन लोगों को साथ में। हाँ, अच्छा आइए, राकेश जी एक मिनट। अब जाइए ना, आइए, चलिए। आजो पीछे आ जाओ सुबह जी, आजो पीछे आ जाइए सारे। हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए बैठिए। अरे बैठिए, मैं भी तो कुछ बोल हमारे मास्क लगाओ है सिखों के साथ कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ और इन्होंने जब ये मंत्री थे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग वाजपेयी जी के साथ, वो इतनी उस वक्त भी हमारे जितने प्रोग्राम जितनी पॉलिसी इन्होंने दी उस वक्त, चाहे 300 साल मनाई, हम सिखों का बर्थडे साबिनी की मेहरबानी। संसद सदस्य श्री अविनाश राय खन्ना जी, पूर्व सदस्य श्री तरलोचन सिंह जी, एक्स MP, बाकी सभी नामधारी समाज के वरिष्ठ नेतागण, टेलीकॉम सेक्रेटरी श्री राकेश गर्ग जी, पोस्टल बोर्ड के मेंबर श्री SK सिन्हा जी, बिट्टू जी, अन्य पदाधिकारीगण विभाग के मित्रों, आज के दिन जहां मैं नामधारी समाज के सारे नेताओं का अभिनंदन करूंगा, तरलोचन सिंह जी का अभिनंदन करूंगा, वहीं मैं अविनाश राय खन्ना जी का भी आज अभिनंदन करना चाहता हूं, जो हमारे MP हैं। जब से मैं टेलीकॉम मिनिस्टर बना हूं, तो अगर कोई सबसे अधिक इस विषय को परस्यू किया है तो हमारे अविनाश राय खन्ना जी ने किया मेरे साथ, ये निकलना चाहिए टिकट। फिर मैंने पूरा कूका मूवमेंट के बारे में विषय अध्ययन किया, मेरे पास समाज के बाकी लोग भी मिलने आए थे, और मैं एक बात तो कहूँगा, सदगुरु राम सिंह जी के बारे में मैं जितना पढ़ता हूँ, 1857 के समय से ही जागृति की लहर लगाना, जब अंग्रेजों के खिलाफ बोलने में लोग हिम्मत नहीं कर पाते थे। 1857 के गदर की भारतीय आज़ादी के प्रथम आंदोलन की असफलता के बाद, जब अंग्रेज पूरे देश में नृशंस बर्बरता कर रहे थे, उस समय मलेरकोटला में जो उन्होंने बुलंद आवाज की, और जिस तरह अपने सहयोगी और समर्थकों में भारत माता के प्रति इतनी बड़ी प्रतिबद्धता का भाव पैदा किया कि तोप के सामने बांध दिए गए, उड़ा दिए गए, सैकड़ों की संख्या में फांसी पे चढ़ा दिए गए और स्वयं रंगून चले गए कई वर्षों के लिए। इसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी, साहस और भारत माता के प्रति प्यार चाहिए। तो सदगुरु श्री राम सिंह के दिन आज मैं उनको बहुत विनम्रता के साथ याद करता हूं कि भारत की आज़ादी के एक बहुत बड़े सेनानायकों में उनका नाम हमें याद किया जाना चाहिए। पोस्टल विभाग ने आज ये काम किया है, बहुत अच्छी बात है। इस स्टैम्प के माध्यम से एक संदेश जाएगा, देश की आने वाली पीढ़ी को कूका आंदोलन के बारे में जानना चाहिए, सदगुरु श्री राम सिंह जी के बारे में जानना चाहिए, उनकी कुर्बानी के बारे में जानना चाहिए। और मुझे जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि जब कांग्रेस का अधिवेशन 1929-30 में लाहौर में हो रहा था, तब नेहरू जी के साथ वो अध्यक्ष बने, वो घोड़े पर चल रहे थे। उस प्रोसेशन में नामधारी सिख लोग बहुत बड़ी संख्या में थे, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब आज़ाद हिंद फौज बनाई थी, तो थाईलैंड में नामधारी समाज ने उनके साथ आज़ाद हिंद फौज में बहुत बड़ा काम किया था। जब भी मैं थाईलैंड जाता हूँ तो भारतीयों के बारे में सुनता हूँ, तो वहाँ नामधारी समाज की संख्या बहुत बड़ी है। तो ये परंपरा भी त्याग से शुरू हुई है, भारत माता के प्रति प्यार से शुरू हुई है। तो इतनी बड़ी परंपरा का आज हमने सम्मान किया है इस टाइम के माध्यम से। मैं नामधारी समाज के सारे नेताओं को हृदय से प्रणाम करता हूँ। उन्होंने सदगुरु श्री राम सिंह की परंपरा को आगे रखा हुआ है, और हिंदुस्तान की आज़ादी में महात्मा गांधी हम सबों के बापू थे, उन्होंने बड़ा काम किया, ये कोई शक नहीं। लेकिन हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए पिछले 150 वर्षों से बहुत लोगों ने कोशिश की। जिस दिन से अंग्रेज यहाँ पर आए, उसी दिन से उन्हें इस बात का एहसास कराया गया कि आपके खिलाफ बगावत होगी। और सदगुरु श्री राम सिंह, नामधारी सिख के हमारे बहादुर नौजवान समर्पित लोगों ने जिस परंपरा को रखा है, सेवा, समर्पण, और मुझे बताया गया है कि गौ रक्षा में भी नामधारी बंधुओं ने बहुत बड़ा काम किया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और आज के दिन मैं यही कहूंगा कि पोस्टल विभाग के मंत्री के रूप में तो टिकट निकलता है, लेकिन आज के दिन कूका मूवमेंट पर
एक डाक टिकट जारी करके हमारा पोस्टल विभाग गौरवान्वित हुआ है। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ बहुत विश्वास के साथ। आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन, मेरी बहुत शुभकामना है। सदगुरु श्री राम सिंह के प्रचार प्रसार और नामधारी समाज के सादगी, सरलता और समर्पण के भाव को समाज के बीच लाने में जो मेरी ओर से जो भी होगा मैं हमेशा करता रहूँगा। आपका बहुत बहुत शुभकामना, बहुत अभिनंदन। थैंक यू। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ये सदगुरु राम सिंह जी का कम्युनिटी कॉइन 100 रुपये का और 5 रुपये का करेंसी कॉइन रिलीज किया था। ये भी आप 5 रुपए का सर्कुलेशन में। हाँ थोड़ा बहुत बढ़िया साहब, क्या बात है। राकेश जी आप तो हाँ ये आप कहाँ पीछे चले जा रहे हैं? थोड़ा इसको टेढ़ा कर दीजिए। एल्बम दे दें, एल्बम दे दें, हम ले लेंगे, रख लेंगे। नहीं नहीं, उनको दे देना। बहुत बहुत धन्यवाद। उनको दे देना। वन प्रेस्टीजियर ये मेरे लिए है? जी आपके अरे बाप रे, मेरा सौभाग्य भाई, मैं जरूर रखूंगा इसको ठीक से करने जाना। बहुत बहुत मैं यहाँ पर बहुत बहुत क्या सुना हुआ चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा खन्ना जी धन्यवाद। ओके एसके थैंक यू। अच्छा भाई साहब थैंक यू। त्रिलोचन सिंह जी तुलसी ग्रेट हो, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बहुत बहुत ठीक है जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है? नहीं नहीं, इनको दे रहे हैं। इनको अरे इनको यहाँ दीजिए, इनको दीजिए। एक मिनट आओ जरा, अपने कितने ये मैं आपको चलो भाई। एल्बम नहीं होगा। अच्छा